आज हम करेंगे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर 8 क्लास। ओके, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। समरी करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है द रोल ऑफ द अदर फाउंड द रोल ऑफ टैक्स इन द शॉप इट वॉज इन अ बैड कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? अवस्था। कंडीशन मतलब अवस्था। बट चीफ ही थॉट दैट he could restore it, so he bought it. He began to work on Christmas Eve. ओके, देन हम इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में करेंगे। देन सेकंड पैराग्राफ आपका बोलता है द लेटर। लेटर के बारे में, उसको एक लेटर मिलता है। लेटर के बारे में क्या लिखा हुआ है? he pulled out of drawers, he found that these had been badly damaged by fire and water. The man who showed it had told him that he was very old. It was a 19th century and made of oak. The last drawer has stuck fast. He had to use much force to open it. When it opened, it revealed a scat space in it. He found a small tin box on the top of the box. These words were written. Jim's last letter received January 25, 1915. To be bear with me when the time comes. Inside the was events envelope with the address Mr. James McPherson, 12 coppers beans, but for the date of December 20, 1940. नेक्स्ट है, हम बात करते हैं जिम एंड कॉइन्स के बारे में। द अदर read the letter, the owner of tax, the must have but in the letter have been written by a captain of English army। ये इंग्लैंड आर्मी है, ठीक है। इंग्लैंड आर्मी को मिसप्रिंट है इंग्लिश आर्मी। His name was James McPherson. He had written it on his wife's coin. A wonderful accident and happened on the butterfly on the Christmas day. James McPherson had netted to in the letter. चलिए, अनकंफर्टेबल मोमेंट कब होता है? द इंग्लिश एंड द जर्मन्स वेयर एट वॉर। The two armies stood in the respective trains on the two sides of the Numberman land. Suddenly, McPherson saw someone warning a with flag from the enemy side. Enemies क्या होता है? आपके जो दुश्मन होते हैं उनको enemies कहते हैं। Then he said many German soldiers calling out to the they were wishing a happy Christmas to English soldiers. Some English soldiers shouted back, "Some to you." The English thought that was all to their surprise. They saved many German wings moving toward them. The captain was alarmed too. I could be tracked. But it was not that he began with them jumps when connect me. The now were released between the soldiers. They were hugging and other jumps of officers. Move the town McPherson, the ship and very the jumps officer said the German officer said that he was from the outside and that he played clothes in the outside. He gave his name as Wolf. In return, McPherson also introduced himself. He said that he was a school teacher for dolls. Next is Doris in Hardy. So Hans Wolf smiled. He said he knew dolls. In fact, he never been England, but knew English. His favorite return of Thomas Hardy. His favorite book was Fair from the Mating Crowd.
It was from there he had learned it all about Destroy McPherson shared with Hans Wolf the Christmas cake his wife and sent to him. Hans Wolf said that a marzipan was best he had ever tasted. It was a wonderful Christmas party. Then next topic है अपना war of football. Football का जब. Then his shoulder popped out of a football. The soldiers played with MacPherson and Hans Wolf clapped and cheered. Hans Wolf suggested that he would be much better of problem we resolved by the football match instead of war. The celebration, मस्ती, मौज मस्ती, okay? So after the football match होने के बाद, the all drinks and in table we consumed now was time to party. Hans Wolf salute MacPherson walked to slowly and unveiled the night the Germans and heard singing a chorus. The English soldier replied with a raising choice of other choral, the exchange choral of will and then was all silence MacPherson. Within a letter, the would translate movement all his life. The hope MacPherson ended letter hoping that war would and should both army long for peace and he was sure the would again. The abandoned house जला हुआ घर ठीक है तो have a read a letter में लिखा हुआ था the others put it back in envelope. He decided to give the letter back home. The address was Watford Dorset, so he doesn't to place. The house number 12 turned out to be a burnt out cell. It was found that MacPherson was a house with a fire. The fireman had got to out just in time. She was 101 years old now. She was in a nursing home. Okay, Mr. MacPherson के बारे में पढ़ते हैं. The other went to nursing home. He met the matter. She told the other that MacPherson was rated confused the day. They had put a confused. The other found MacPherson sitting in the chair. Naturally, she looking out of the other worthy, but here is it what he called him out. Gave her a letter to told him how had got better, but she was not listening to him. The reached out and took his hand. Her eyes were filled with tears. She felt that here Jim had written. She said that Jim gave out promise he had written on the event Christmas. She made him sit beside her. She kissed his cheek. She talked long and lovely to him. She said that she had got the best Christmas present in the world. तो ये क्या हो गया? क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. अब इसको हिंदी में आपको समझा देते हैं. चलिए शुरू से हम लोग हिंदी में देखते हैं. लेखक को एक कबाड़ी की दुकान पर एक रोड टोल टैक्स मिली. इसकी हालत खराब थी पर यह सस्ती थी. उसे लगा कि वह इसे ठीक कर लेगा, अतः उसने इसे खरीद लिया. क्रिसमस के एक दिन पहले उसने उस पर काम करना प्रारंभ किया. मतलब वो जो उसको रोड टैप मिली थी उस पर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया. फिर पत्र के बारे में आता है उसने तराजे बाहर खींचे. उसने देखा कि आग और पानी ने उन्हें बुरी तरह से संग्रहित कर दिया, मतलब उसको बेकार कर दिया. जिस व्यक्ति ने इसे बेचा था उसने बताया कि वह बहुत पुरानी है. उसे 19वीं सदी थी. यह 19वीं सदी थी और ओक की बनी थी. अंतिम दराज अधिक फंसी हुई थी. उसने इसे खोलने के लिए अधिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा.
खुलने पर इसके नीचे एक गुप्त जगह दिखी। इसके अंदर उसे छोटा सा टीन एक का डिब्बा मिला। डिब्बे के ऊपर ये सब थे 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम्स का अंतिम पत्र, मेरे साथ दफनाने के लिए। जब वह अवसर आया, अंदर एक लिफाफा था जिस पर यह पता लिखा था, श्रीमती जिम्स मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचिंग फ्रीपोर्ट। उस पर तारीख 26 दिसंबर 1914 थी। जेम्स और टॉनी के बारे में पढ़ते हैं। लेखक ने पत्र पढ़ा। आवश्यक डेस्क के लिए मालिक ने इसे वहां रखा होगा। पर पत्र ब्रिटिश सेना के एक कैप्टन ने लिखा था। उसका नाम जेम्स मैकफर्सन था। उसने यह पत्र अपनी पत्नी को कोनी को लिखा था। कोनी उसकी पत्नी का नाम है। क्रिसमस के दिन युद्ध भूमि एक अर्ध घटना थी जिसमें मैकफर्सन ने अपने पत्र में उसका वर्णन किया, मतलब उसको अपने जो पत्र है उसमें लिखा। तो अंग्रेजों और जर्मन के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं अनयुद्ध भूमि के दोनों ओर अपनी अपनी खंड में खड़ी थी। अचानक मैकफर्सन ने देखा कि शत्रु की ओर से कोई व्यक्ति सफेद झंडा लहरा रहा है। फिर उसने देखा कि बहुत से जर्मन सिपाही उन्हें आवाज लगा रहे थे। वे अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की मुबारकें दे रहे थे। कुछ दिन सिपाही जवाब में बोले, आपको भी मुबारक। अंग्रेजों ने समझा कि बात खत्म हुई। उन्होंने यह देखकर हैरानी हुई कि बहुत से जर्मन उनकी ओर चले आ रहे हैं। कैप्टन डर गया, यह कोई चाल हो सकती है, पर ऐसा नहीं था। वह अपने साथ जर्मन शराब और दंडगोश लेकर आ रहे थे। अब सिपाहियों के बीच बंदूकें नहीं थी। वह एक दूसरे के गले मिल रहे थे। जर्मन अफसर मैकफर्सन की ओर बढ़ा। बड़े गर्मजोश के साथ उन्होंने हाथ मिलाया तथा जर्मन अफसर ने बताया कि वह टैक्स ऑफ निवासी था। उसका काम ऑटो सेलों बजाने का था। उसने अपना नाम हर्ष वॉल्फ बताया। बदले में मैकफर्सन ने भी अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह डोरसेट के स्कूल में शिक्षक था। शिक्षक मतलब टीचर था। ओके, डोरसेट की आर्टिस्ट। तो हर्ष वॉल्फ मुस्कुराया। उसने कहा कि वह डोरसेट को जानता है। वास्तव में वह कभी इंग्लैंड नहीं गया, पर उसे अंग्रेजी आती थी। उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था। फार फ्रॉम द मैन क्राउन उसकी मनपसंद पुस्तक थी। उसी पुस्तक से उसने डॉर्सेट के बारे में सारा कुछ जाना था। मैकफर्सन ने हर्ष वॉल्फ के साथ क्रिसमस का केक बांटा जो उसकी पत्नी ने उसे भेजा था। हर्ष वॉल्फ ने कहा कि इतनी बड़ी मर्ज पे उसने पहले कभी नहीं चखी थी। यह एक शानदार क्रिसमस पार्टी थी। युद्ध का फुटबॉल में जो युद्ध हुआ, तभी कोई सिपाही फुटबॉल ले आया। सैनिक खेलते रहे जबकि मैकफर्सन और हर्ष वॉल्फ तालियां बजाते और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। वॉल्फ ने कहा कि अगर युद्ध के स्थान पर समस्याओं का निदान फुटबॉल की मैच से तो संसार भी एक स्थिति बेहतर होगी। इन मौज मस्ती फुटबॉल मैच के बाद खाने पीने का सारा सामान खा पी लिया गया। अब बिछोए की वेल थी। हर्ष वॉल्फ मैकफर्सन को सलाम किया और धीरे धीरे अंशपुर चला गया। उस रात जर्मन की ओर एक कोरल गाने की आवाज आई। इसका जवाब अंग्रेजी सिपाहियों ने समूह गाने के रूप में एक अन्य पकड़ती हुई कोरल गाकर किया। कुछ देर तक कोरल का यह क्रम चलता रहा, फिर सब शांत हो गया। मैकफर्सन ने अपने पत्र में लिखा कि वह उन्हें क्षण जीवन को याद रखे। आशा।
मैकफर्सन ने अपने पत्र का अंत इस आशा के साथ किया कि युद्ध संग्रह ही समाप्त हो जाएगा। दोनों ही सेनाएं शांत चाहती हैं और उसे विश्वास था कि वह शीघ्र ही फिर से मिलेंगे। जला हुआ घर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जला हुआ घर। तो पत्र को पढ़कर लेखक ने उसे वापस लिफाफे में डाल दिया। उसने निश्चय किया कि वह पत्र लेकर उसके पास जाएगा जिसने यह पत्र लिखा था। पते पर बर्डफोर्ड डैश से लिखा हुआ था। वह गाड़ी में बैठा वहां पहुंचा। 12 नंबर मकान जली हुई कोठरी थी। पता लगा कि श्रीमती मैकफर्सन आग लगने के समय उसके अंदर ही थी। फौरन उसने बिल्कुल अंतिम क्षण में बाहर निकाला था। वह 101 वर्ष की थी। अब वह एक नर्सिंग होम में थी। श्रीमती मैकफर्सन लेखक नर्स हो गया। वह उसे मैट्रिन मिला। उसने लेखक को बताया कि उस दिन श्रीमती मैकफर्सन कुछ भ्रामिक अवस्था में थी। उन्होंने एक कवरेज में रखा था। लेखक ने श्रीमती मैकफर्सन को एक कुर्सी पर बैठे पाया। स्वाभाविक था कि वह लेखक को रीति निगाहों से देख रही थी। तब उनकी आंखों में चमक आ गई जब लेखक ने उनसे कोनी कहकर पुकारा और उन्हें यह पत्र दिया। उसने उनसे बताया कि उसे यह पत्र कैसे मिला, पर वह उसे सुन नहीं रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेखक के हाथ को पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसे लगा कि उसका जिम लौट आया है। वह बोली कि उसके जिम ने अपना वादा निभा दिया। वह क्रिसमस के अवसर पर लौट आया। उसने उससे अपने पास बिठाया। उसने उसका गाल चूम लिया। वह बड़ी देर तक और बड़े प्रेम से उससे बातें करती रही। उसने कहा कि उसे संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस की भेंट मिल गई। धन्यवाद। ये चैप्टर आपका खत्म होता है। उम्मीद है सभी कॉन्सेप्ट पूरी आपकी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।